Hello student, good morning. Today we are going to start our exercise 4.1. It is based on range. Yesterday we learnt about range. So what is the meaning of range? The difference between the highest and the lowest observation of the data is called range and it is denoted by कैपिटल आर. अंडरस्टैंड. और हमने उसके फॉर्मूलाज भी देखे थे, राइट. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज? एक्स एच माइनस एक्स एल. इट मीन्स हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, राइट. एंड फॉर द रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड किया जाता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय dividing the measure of range by sum of the highest value and the lowest value is called the coefficient of range. So what is the formula for coefficient of range? Coefficient of range is equal to highest value minus lowest value divided by highest value plus lowest value. Understand? So these are the formulas for range. Now we are going to start our exercise 4.1. I am reading a question. You have to listen it carefully. The following data refer to the heights in centimeters of 10 students of a class. Find range and coefficient of range of height of the students. क्या फाइंड करना है हम लोगों को? रेंज फाइंड करना है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है. तो these are the data. हाइट्स दी गई है स्टूडेंट्स की 162, 145, 170, 181, 167, 151, 175, 185, 169, 156. So these are the data for 10 students of a class. Heights of the 10 student of a class. उसकी हमें इंफॉर्मेशन दे गई है. उसमें से हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमको फाइंड करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. तो हम लोग इसमें से हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे. तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमें कौन सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो 185 इज द हाईएस्ट वैल्यू हो गया, राइट. और सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा है? तो सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ से हमें है 145. सो हमारा रेंज तो यहीं से मिल गया हमें 185 माइनस 145. तो हमारा आंसर क्या आएगा रेंज का? 40 सेंटीमीटर, राइट. अब हमें क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है. तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स एच माइनस एक्स एल डिवाइड बाय एक्स एच प्लस एक्स एल, राइट. तो हम फॉर्मूला रख के फाइंड किया जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. सबसे पहले हम रेंज फाइंड करेंगे. सबसे पहले डेटा में से हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू जैसे हमने आगे अभी फाइंड किया वैसे ही हम लोग फाइंड करेंगे और फिर हम रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. So look at here students, sum number 1, height of 10 students are given 162, 145, 170, 181, 167, 151, 175, 185, 169, 156. Here XH, it means highest value. Highest value 185, so write down here 185 centimeter, and lowest value. So lowest value 145 centimeter. Now we are going to start to find range. We are putting the range formula. Range is equal to XH minus XL. So हमें range मिल जाएगा, right? So range is equal to XH minus XL. Highest value minus lowest value. 185 minus 145. So 185 minus 145 range is equal to 40 centimeter. So this is our answer.
तो रेंज कितना हो गया 40 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. Coefficient of range is equal to XH minus XL divided by XH plus XL. It means highest value minus lowest value divided by highest value plus lowest value. So XH 185 minus 145 divided by 185 plus 145. 185 माइनस 145 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा. जो आगे हमने रेंज फाइंड किया हुआ है 40. 185 प्लस 145 330. सो 40 डिवाइड बाय 330. सो आवर आंसर इज 0.12. तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना हो गया हमारा 0.12. सो दिस इज आवर आंसर एंड आवर सम नंबर 1 इज ओवर हियर. I hope you understand it. Now moving to the next sum number 2. Sum number 2. A bus company has 77 buses for traveling in the city. The information of number of passengers in bus on a particular day at a particular time is given below. Find the range and coefficient of range of number of passengers. So first, number of passengers 2, 7, 10, 18, 25, 30, 37. Number of buses 1, 4, 11, 17, 23, 16, 5. सो ये हमारा कैसा डेटा है. सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये हमारा कौन सा डेटा है. तो ये हमारा डिस्क्रीट डेटा हो गया, राइट. जब भी हमें डिस्क्रीट डेटा दिया गया हो तब हमने कल ही सीखा था कि रेंज में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं. सो डिस्क्रीट डेटा के लिए हम लोग XH माइनस XL ही किया जाता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू भी किया जाता है. बट यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी नंबर ऑफ पैसेंजर्स, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी 37 इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हो गया. और लोएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इट मीन्स 2. तो हमें हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना है तो हमें क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा. अगेन ये कौन सा डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है, राइट. डिस्क्रीट डेटा के लिए हम लोग कल रेंज का फॉर्मूला सीख चुके थे. रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू ही होता है. बट फॉर डिस्क्रीट डेटा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, राइट. नंबर ऑफ बसेस तो हमारी फ्रीक्वेंसी है. तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स क्या हो गया हमारा, वेरिएबल हो गया. तो वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट 37 है और सबसे लोएस्ट 2 है. तो हम लोग 37 में से 2 माइनस कर देंगे तो हम लोगों को रेंज मिल जाएगा, राइट. और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज उसका फॉर्मूला भी हमें मालूम है. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू क्या होता है उसका फॉर्मूला, XH माइनस XL डिवाइड बाय XH प्लस XL, राइट. तो अब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड रेंज फाइंड करेंगे. यहाँ पे क्लियरली दिया गया है फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यानी पैसेंजर्स का हमें फाइंड करना है. तो पैसेंजर्स में सबसे हाईएस्ट पैसेंजर 37 है और सबसे लोएस्ट पैसेंजर 2 है. तो हम लोग ये हाईएस्ट वैल्यू लेंगे और ये 2 क्या लेंगे, लोएस्ट वैल्यू. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट पैसेंजर यानी मैक्सिमम पैसेंजर फाइंड करेंगे. उसके बाद हम मिनिमम पैसेंजर. सो हियर XH इज इक्वल टू मैक्सिमम पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन अ बस इज इक्वल टू 37.
हमने हमारे डेटा में देखा हुआ है कि मैक्सिमम पैसेंजर 37 थे. नाउ नेक्स्ट, एक्सएल इज इक्वल टू मिनिमम पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन अ बस इज इक्वल टू 2, यानी सबसे कम से कम पैसेंजर कितने हैं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो 2 है. तो ये हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट वैल्यू हो गया 37 और लोएस्ट वैल्यू हो गया हमारा 2. तो अब हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है और फिर रेंज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. सबसे पहले रेंज फाइंड करेंगे. एक्सएच माइनस एक्सएल होगा, यानी 37 माइनस 2 हो जाएगा. तो हमें क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा. So range is equal to XH minus XL. XH minus XL 37 minus 2. So our answer is 35 passengers. So हमारा रेंज क्या हो गया, 35 पैसेंजर. ये हमारा कौन सा हो गया, एब्सोल्यूट मेजर हो गया. ये कौन सा हो गया, एब्सोल्यूट मेजर. मैंने बताया हुआ था कि एब्सोल्यूट मेजर जो जिस यूनिट में होता है वही यूनिट में उसको प्रेजेंट किया जाता है. तो रेंज 35 passenger. This is our answer for absolute measure. Now moving to the next, coefficient of range find करना है. तो उसका फॉर्मूला है XH minus XL divide by XH plus XL, right? So let us start our sum for coefficient of range. Now what we have to find, coefficient of range. So what is our formula, XH minus XL highest minus lowest value divide by XH plus XL, highest plus lowest, highest plus lowest. सो XH माइनस XL को रेंज भी कहा जाता है क्योंकि हम लोग XH में से XL को माइनस करते हैं तो क्या अल्टरनेट में फाइंड होता है, रेंज ही फाइंड होता है. तो ये भी फॉर्मूला हम लोग लिख के फाइंड कर सकते हैं. तो R डिवाइड बाय XH प्लस XL हो जाएगा. तो हमने रेंज फाइंड कर दिया है. 37 माइनस 2 तो 35. सो 35 डिवाइड बाय 37 प्लस 2. सो 37 प्लस 2 यानी 39 हो जाएगा. 35 डिवाइड बाय 39. सो दोनों को डिवीजन होगा तो क्या आएगा आंसर, 0.90. सो ये हमारा क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. अंडरस्टैंड. सो अवर आंसर इज 0.90 एंड रेंज का आंसर 35 पैसेंजर्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू 0.90. This is our answer. Our sum is over here. I hope you understand it very well. Thank you, students.